all are safe and watching the videos regularly. In this video, we will do the chapter that is Reaching the Age of Adolescence NCERT exercise. Now, in this, we will do the first question. What is a term used for chemical secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन से केमिकल सिक्रीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं. बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन्स. दैट आर द केमिकल सब्सटेंस. एंड ये हार्मोन्स क्या करते हैं? दैट दे ब्रिंग changes in the body according to the requirement. So the chemical substance secreted by the endocrine glands is called hormones. These hormones are responsible for the changes taking place in the body. Now the next question is define adolescence. Adolescence क्या है? The time period which comes between the beginning of adulthood and puberty. Puberty और adulthood के बीच का जो time period है that is known as adolescence. इन दिस टाइम पीरियड, अब इस टाइम पीरियड में होता क्या है? द बॉडी अंडरगोस डिफरेंट चेंजेस. यहाँ पे अलग अलग चेंजेस होते हैं एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है. किसी किसी में द एज ऑफ एडोलेसेंस इज 11 एंड इट एंड्स एट द एज ऑफ 18 और 19. दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन. मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच टेक्स प्लेस regularly at every month, and in this the shedding of uterine lining takes place. The process of shedding of the uterine lining on a regular monthly basis is called menstruation and it takes place in female body. It starts at puberty and in the reproductive cycle of the female body. The uterus prepares itself to receive a fertilized egg on every month. If you remember, I have told you that at the time of egg release, the uterus is preparing itself for fertilization. But if the fertilization does not take place, the lining of the uterus, that is endometrium, breaks down and shed off, and it leads to the process known as menstruation. Due to this, the inner lining of the uterus becomes thick and is supplied with blood to nourish the embryo. If the egg is not fertilized, then the lining of the uterus breaks down and gets released in the form of blood through the vagina. The time period for this is about 2 to 8 days every month. This monthly cycle is known as menstrual cycle. I hope this question is clear to you. Now the next one is list the changes in the body that takes place at puberty. कौन से changes आते हैं puberty के time पे? The first, height and weight of the body will increase. Second, hairs appears on the legs, hands, face and underarms. In female, the enlargement of ovary takes place. It produces matured eggs, and in males, testes grows and start producing sperms. But in males also, the shoulder broadens and chest become wide, whereas in female, the waist become wider. I hope this question is clear to you. Next point is acne appears on the body. जहाँ पे ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्ने पिंपल फॉर्मेशन हो जाती है. वॉइस में लानेक्स प्रोमिनेंट मतलब एडम्स एप्पल बाहर निकल जाता है, वॉइस हार्ड हो जाती है. एंड फीमेल्स में सॉफ्ट और हाई पिच वॉइस हो जाती है. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग द नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम. आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे दिए, अब आपको बताना वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है. द फर्स्ट, टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन. Ovary secretes estrogen. Pituitary gland secretes growth hormone. Adrenal secretes adrenaline hormone. Thyroid secretes thyroxine hormone. And pancreas secretes insulin hormone. I hope this question is clear to you. Now the next question is question number 6. What are sex hormone? Why are they named so? State their function. सेक्स हार्मोन कौन से हैं, उनका नाम सेक्स हार्मोन क्यों पड़ा है एंड उनके फंक्शंस क्या है. सेक्स हार्मोन क्या है? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो सेक्स ऑर्गन में सिक्रीट करें. द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन. फॉर एग्जांपल, इन फीमेल्स द सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी कॉल्ड ईस्ट्रोजन. लाइक फीमेल्स में सेक्स हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी, एंड वो हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन. एंड मेल में सेक्स हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड द हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. फंक्शंस, ईस्ट्रोजन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स लेके आएगा. फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करेगा.
टेस्टोस्टेरोन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे बॉयज़ के अंदर, बियर्ड दाढ़ी ग्रो कर जाएगी, वॉइस हार्श हो जाएगी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक्स प्लेस. आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 6 is clear to you. Next, question number 7 is choose the correct option. The A part is adolescents should be careful about what they eat because adolescence में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं. क्यों रखना पड़ता है? प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन, कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपको ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा. प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. प्रॉपर डाइट होगी तो आपकी ग्रोथ जो हो रही है एकदम से वो बहुत सही डायरेक्शन में होगी. एडोलेसेंस में लोग बहुत ज़्यादा भूखा फील करते हैं या टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं टीनेजर्स में. क्लास टेस्ट बर्ड्स आपको स्टार्टिंग में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर डाइट होगी तो बेसिकली आपकी जो एकदम से सडन ग्रोथ हो रही है वो उस चीज़ को मेंटेन करेगा एंड आपकी बॉडी में भी कोई साइड इफेक्ट जनरेट नहीं होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. नाउ द बी पार्ट इज रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर. रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है वुमेन के अंदर? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, या ब्रेस्ट डेवलप करना स्टार्ट करती है, बॉडी वेट इंक्रीज करता है या हाइट इंक्रीज करती है. प्लस हाइट इंक्रीज स्टार्टिंग से करती है, ब्रेस्ट भी डेवलप कर जाती है, मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाती है. बट द करेक्ट आंसर इज बॉडी वेट जब इंक्रीज करता है तभी आपका रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ. राइट मील जो सही है एडोलेसेंट्स की एज में मील वो कौन सा है? चिप्स, नूडल, कोक? नो. चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, नूडल एंड बर्गर. बर्गर्स एंड नूडल्स कभी भी हेल्दी फूड नहीं होता. वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक. चिप्स आ गए तो ऑब्वियसली वो भी हेल्दी डाइट नहीं हुई. सो द करेक्ट आंसर इज चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स. ओके, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडम्स एप्पल. व्हाट इज एन एडम एप्पल? जब आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आता है बॉयज़ के अंदर तो वहाँ पे वॉइस बॉक्स ग्रो कर जाता है एंड जब ये वॉइस बॉक्स ग्रो करता है तो प्रोमिनेंट हो जाता है एंड द वॉइस बिकम्स हार्ड. तो जब ये वॉइस हार्ड होती है तो वहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स बाहर की तरफ ग्रो करता दिखता है. दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल. नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर. इन ह्यूमन मेल्स द लार्ynx ग्रो लार्जर एट द टाइम ऑफ puberty and can be seen as a protruding part of the throat. This protrusion is known as Adam's apple. In boys under the influence of sex hormone, the larynx becomes prominent. Due to this, the vocal cord becomes thicker and longer, which causes the voice hoarse. On the other hand, in females, the larynx is of so small size and is hardly visible. Females में नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है. Therefore, girls have a high-pitched voice while the boys have a deep voice. I hope this Adam apple is clear to you. Now the B part is secondary sexual characters. Secondary sexual characters के ऊपर definite short note लिखना है आपको. The secondary sexual characters are the characters which distinguish a boy from a girl. The secondary sexual characters of boys include hair on chest and growth of the beard, moustache. ये आपको सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं मेल्स के अंदर. एंड फीमेल्स में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ फेयर अंडर द आर्म एंड द प्यूबिक रीजन. ओके, नेक्स्ट द सी पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न चाइल्ड. जो चाइल्ड ग्रो नहीं किया उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगी? आप सबको पता है इन मेल्स वी हैव एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एंड इन द फीमेल्स वी हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम. सो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है आपका? हमेशा हमने वीडियोस में देखा था the deciding factor is always the male body. So male body के पास दो अलग अलग chromosomes है X and Y. So if the female receives X chromosome from the male, then it will be a boy, it will be a girl. But if the female body receives Y chromosome from the male, then the child will be a male. So deciding factor is always your male body. The sex of the unborn baby is determined by the sex chromosome of the father, right? As the father contains two chromosomes, X and Y chromosome, an egg will always have an X chromosome. Therefore, if the sperm contributes X chromosome, अगर sperm ने X chromosome दिया है, the baby will be a female, that is X and X. And if the sperm contributes Y chromosome, then the baby will be a male, that is X and Y chromosome. Okay. नाउ नेक्स्ट इज वर्ड गेम. पजल दे रखी है आपको, सॉल्व करनी है. नाउ
अक्रॉस का थर्ड इज प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, वॉइस बॉक्स बॉयज में इंक्रीज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल. नाउ नेक्स्ट, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, जहाँ पे ग्लैंड्स नहीं होते डक्ट्स में, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच टू ब्रेन, ब्रेन से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच होता है दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं क्लास, बताओ. सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं एट का, दैट इज हॉर्मोन्स, दैट इज हॉर्मोन्स. नेक्स्ट, पेंक्रियाटिक हार्मोन कौन सा होता है आपका, इंसुलिन होता है, जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है. फीमेल हार्मोन इज ईस्ट्रोजन. ओके. नाउ डाउन का फर्स्ट, दैट इज मेल हार्मोन, मेल हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ओके. नेक्स्ट, सिक्रेट्स थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कौन सिक्रेट करता है, थायरॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर टीनेज, टीनेज के लिए कौन सी टर्म होती है, एडोलिसेंस. नेक्स्ट 5, हार्मोन विच इज थ्रू हेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन्स जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रीच करते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, दैट इज, एक सेकेंड क्लास, फिफ्थ, that is puberty, that is puberty. Voice box is larynx. 5 is hormone which is here through the bloodstream is endocrine. Okay. Next, 7th term for changes at adolescence, that is puberty. Okay, I hope the questions are clear to you. Class 5th का आंसर इज hormone which is here through bloodstream is target site, जो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक पर्टिकुलर साइट पे पहुंचते हैं, दैट इज योर टारगेट साइट. 6, voice box is your larynx and the term for changes at adolescence is puberty. I hope these questions are clear to you. Please do it in your notebook and submit to me. That's all for today. Thank you and have a nice day.